Good evening, everyone. Myself, Aman Kochar, counseling psychologist. Earlier in the past two sessions, we started off with the chapter of class 12th, first chapter, which is variations in psychological attributes. In the first session, we studied what are the psychological attributes and how attributes affect a daily person's life. After that, in the second lecture, we try to study or we try to learn the types of psychological attributes and what are the assessments, what is the use of assessment, what are the needs of assessment to carry out an assessment on an individual, and the different types of domains of psychological attributes, which were particularly interest, personality, values, and intelligence. So, without much wasting any time, let's get started with the next topic of today, that is the assessment methods. So basically, assessment methods we already studied in class 11th. We are just gonna revise it, or I should say that we should take a review of that how assessments are taken and what are the different types of methods that are used for the assessment methods. So the first method which we are gonna study is the psychological test. As it says, it is an objective and standardized measure of an individual's mental or behavioral characteristics. What is meant by the term objective and standardized is that the term objective defines it is the test which is only for that particular individual. That is why it is known as objective. And on the other hand, if we try to define it in a more generic manner, then we can explain it as वो एक पर्टिकुलर टेस्ट जो उस इंडिविजुअल के लिए दिया गया है या उस इंडिविजुअल के लिए वो टेस्ट है, वही सेम टेस्ट हर इंडिविजुअल के लिए भी है. इट डजेंट मीन दैट वो एक टेस्ट एक इंडिविजुअल का था और उसके बाद हम उस टेस्ट को कैरी नहीं कर सकते या उस टेस्ट के मदद से हम कोई रिजल्ट या डायग्नोसिस क्रिएट नहीं कर सकते. दैट इज नॉट व्हाट ऑब्जेक्टिफिकेशन मीन्स. ऑब्जेक्टिफिकेशन और the objective test is that on each and every individual, if the illness or the disorder or the especially mental disorder is carried on, then that kind of psychological test can be carried out. Now another term standardized है. Standardized का मतलब अगर हम समझें तो standardized का meaning है कि उस test का एक procedure होगा. There would be some rules and regulations that needs to be followed both by the individual as well as the client. Objective tests have been developed to measure all the dimensions of the psychological attributes. जितने भी हमने psychological attributes पढ़े या आगे हम और पढ़ेंगे, जिनमें basically interest, personality और इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड की बात होती है, तो ये सारे पर्सनालिटी के ही एस्पेक्ट्स हैं अगर एक लेमैन टर्म में जाना जाए, बट दे हैव अ ब्रॉड डिफरेंस इन देम. उसी के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा टेस्ट होता है कि ये मोस्टली हर तरीके का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मेजर करने के लिए केपेबल, रिलायबल एंड वैलिड है, जैसे कि इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड. These tests are widely used for clinical purposes, for creating diagnosis, for personnel selection, for placement and trainings. बहुत सी कंपनीज में प्लेसमेंट से पहले इंटरव्यूज कराए जाते हैं. दैट इज अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट मेथड. इंटरव्यूज के बाद ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, जीडीज जिसे हम बोलते हैं. उनसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखवाया जाता है या एक कॉमन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखवाया जाता है. सो वो दैट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, नॉट पर्टिकुलरली और only a type of psychological test, but it is in general a psychological test to just get the review of that individual, how an individual is capable of doing such and such problems or issues in the near future, or if he or she is getting selected in the company. The second method is interview. Interview is just a information seeking communication between two people. सो ये वन ऑन वन बेसिस पे, जैसा बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में मेंशन है, वन ऑन वन बेसिस पर ये एक कन्वर्सेशन रखी जाती है जिसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स
कुछ स्किल्स या टैलेंट्स के ऊपर बात की जाती है. सो दैट इज जस्ट व्हाट एन इंटरव्यू मीन्स. इंटरव्यूज कंपनीज में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इंटरव्यूज किए जाते हैं. कभी कभार इंडिविजुअल इंटरव्यूज होते हैं, कभी कभार ग्रुप डिस्कशंस के बेसिस पे इंटरव्यूज रखे जाते हैं. बट वो ग्रुप डिस्कशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इंटरव्यूज. बेसिकली इंटरव्यूज आर कैरिड विद अ माइंडसेट ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज केस स्टडी. केस स्टडी दैट आप इसको वर्डिंग से समझ सकते हैं कि केस की स्टडी करना. सो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में उसका केस आता है एक क्लाइंट के पास, और एक क्लाइंट उस चीज को अपनी लाइफ से कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, एक काउंसलर को, एक साइकोलॉजिस्ट को, एक थेरेपिस्ट को. सो वो केस स्टडी होता है. केस स्टडी बेसिकली एक इन डेप्थ स्टडी है, जैसा कि बुक में मेंशन है, जहां पर हम इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, सब चीजों के बारे में ब्रीफली बात करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे, और साथ ही साथ जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये उसकी लाइफ से बेसिकली कनेक्ट कैसे करता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ट्राई इन द सेशंस एंड ड्यूरिंग द सेशंस वी ट्राई टू साइको एजुकेट द क्लाइंट एज वेल, ताकि वो क्लाइंट अपनी हिस्ट्री को समझ पाए, अपने हिस्ट्री से उसको अवेयरनेस हो, एंड ही और शी गेट्स एन इनसाइट. Case studies are widely used by clinical psychologists. Case analysis of the lives of people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. केस स्टडीज में बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन होता है इंटरव्यूज का, ऑब्जर्वेशन का. अभी हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन. उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन एयर्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन एयर्स होते हैं. तो उन सब चीजों के बारे में एक कॉम्बिनेशन टर्म, एक कंबाइंड, एक अम्ब्रेला टर्म जब हम क्रिएट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ केस स्टडी. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट basically means a systematic, organized and objective procedure to record a behavioral phenomena. किसी भी इंडिविजुअल को जब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन से पहले कुछ रूल सेट करते हैं. वो काउंसलर या थेरेपिस्ट अपने लिए रूल सेट करते हैं जहां पर वो सिस्टमैटिक होने की कोशिश कर सकते हैं. सिस्टमैटिक किस तरीके से? या तो वो उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनेंगे, या तो वो उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं बनेंगे. तो ये दो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हैं जहां पर हम सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर होगा. अगेन ऑब्जेक्टिव मींस कि वो हर इंडिविजुअल का बिहेवियर हम उस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम उसको एक केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं. Next, the major problems with observational methods are that the observer has little control over the situation and the reports may suffer from subjective interpretations of the observer. यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनर फ्लॉ आ जाता है ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं, आपके पास कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व. और वहां पर प्रॉब्लम ये इशू क्रिएट हो सकता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो क्लाइंट या वो इंडिविजुअल उस तरीके का बिहेव नहीं कर पाता है उस सिचुएशन में, देन हमारा ऑब्जर्वेशन उस तरीके से गलत हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, और एग्जाम टाइम पे टीचर्स के माइंड में एक प्री जजमेंट क्रिएटेड होता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर्स या जो टेस्ट है वो वेल प्रिपेयर्ड होगा एक इंडिविजुअल. बट हो सकता है कि इसके चांसेस ज़्यादा ना हो. ठीक, तो वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन का माइनर फ्लॉ आपको दिख सकता है. नेक्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट इज अ मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स factual information about herself and the opinions about herself or himself, or the opinions or the beliefs that he or she holds. Such information may be obtained by using an interview schedule or a questionnaire. तो सेल्फ रिपोर्टिंग नाम से आप चीज पहचान रहे होंगे कि सेल्फ को रिपोर्ट करना.
इट मीन्स कि आपको अपने बारे में रिपोर्ट करना है किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक काउंसलर या थेरेपिस्ट को, जो कि कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, कुछ क्वेश्चनर्स फॉलो करेगा, जिनकी मदद से आप अपने हिस्ट्री, अपना प्रेजेंट अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से बता पाएंगे विदाउट हैविंग एनी जजमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो आज हमने पढ़ने की कोशिश करी. These are the different types of assessment methods. Now, the next part which we are gonna study is intelligence. That is one of the key attributes in psychology that is studied broadly by various psychologists and counselors throughout their lives, and currently also there are many researches going on. So we try to understand what intelligence means. इंटेलिजेंस अगर किसी जनरल या एक लेमैन इंसान को बताया जाए कि इंटेलिजेंस क्या है, तो उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से बताएगा? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वेल ही और शी इज एजुकेटेड. तो उनकी एजुकेशन के बेसिस पर आप एक इंसान को इंटेलिजेंट मानोगे या उसको एवरेज या बिलो एवरेज मानोगे. ये एक बिलीफ है, एक धारणा है लोगों की. ऐसा एज्यूम करते हैं लोग कि ये चीज कुछ लेवल तक या कुछ हद तक सच है, बट ऐसा नहीं होता. इंटेलिजेंस को अगर एक्चुअल में डिफाइन करना हो, इट इज बेसिकली very different. It is quite different from the common notion or the common term of what psychology is meant by the word. The Oxford Dictionary explains intelligence as the power of perceiving, learning, understanding and knowing. So ये चार बेसिक टर्म्स जो बताई. परसीव करना मीन्स किसी अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उन सेंसेस के अकॉर्डिंग किसी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना, गैदर करना, एब्जॉर्ब करना, दैट इज परसीविंग. लर्निंग, after perceiving that information or the data, then we try to learn from that data, that what is meant by the data or what should we do with that data or what should we not do. Next part is the understanding. जब आप लर्न कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, देन आप उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. नो हियर अ कंफ्यूजन में अराइज दैट अंडरस्टैंडिंग पहले होती है या लर्निंग पहले होती है. बिकॉज हम क्वेश्चन आंसर तो ऐसे ही रीड करते हैं, हम चैप्टर तो ऐसे ही रीड कर रहे हैं अभी, कि हम पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं देन लर्न कर रहे हैं. बेसिकली ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंटरचेंजेबल हैं. उसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये भी है कि कुछ टाइम के लिए एक ह्यूमन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करके नई टेक्निक्स को लर्न करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ वो लर्न करते करते नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करता है. सो ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंटरचेंजेबल हैं. सो दैट कैन क्रिएट अ बिट ऑफ कंफ्यूजन. लास्ट इज नोइंग. आप जान लेते हो, आपने परसीव कर लिया उस इंफॉर्मेशन को, आपने उस डेटा को, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की अपने सेंसेस के थ्रू, देन यू ट्राई टू लर्न, एंड अगर वो लर्निंग में प्रॉब्लम आता है देन यू क्लियर आउट योर डाउट्स. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. सो हियर इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट अंडरस्टैंडिंग बाद में हो सकती है लर्निंग के बाद. एंड द लास्ट इज नोइंग, कि तब जाके आपको एक बेसिक कंसेप्ट, एक क्राइटेरिया, एक रूल समझ में आता है कि व्हाट द थिंग इज और व्हाट द टर्म इज एक्चुअली सेइंग. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. नाउ इफ वी गो इन हिस्ट्री, देन हमारे पास जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट या फर्स्ट ऐसे इंसान जिन्होंने, ऐसे प्रोफेशनल जिन्होंने इंटेलिजेंस को यूज किया या इंटेलिजेंस टेस्ट को क्रिएट किया, ही वाज अल्फ्रेड बिनेट. Alfred Binet was one of the first psychologists who worked on intelligence. He defined intelligence as the ability to judge well, understand well, and reason well. Alfred Binet basically फ्रेंच आर्मी में अपॉइंट किए गए थे, बिकॉज फ्रेंच आर्मी के जो लीडर थे वो चाहते थे कि हमारी आर्मी में वेल क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स आए और वो ट्रेनिंग करें. सो उन इंडिविजुअल्स के लिए एक प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया जो डेवलप किया था अल्फ्रेड बिनेट ने, और वो टेस्ट जाना गया आईक्यू टेस्ट के नाम से उस टाइम पे.
बट ऑब्वियसली उस टेस्ट में, क्योंकि वो आर्मी सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए था और पर्टिकुलरली एक सिचुएशन बेस्ड टेस्ट था, तो उसमें कई सारे चेंजेस हुए जो हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे, या मैं बताता रहूँगा, आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, या जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक होगा। वेस्टलर उसके बाद एक और इंटेलिजेंस के डिफाइन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट आए, हुज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड, अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, that is its value for adaptation to the environment. He defined it as a global and aggregate capacity of an individual. एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी एबिलिटी एक इंडिविजुअल में जो कि ग्लोबल होगी, किस चीज के लिए? टू थिंक रेशनली, act purposefully and deal effectively with the environment. तो हमें हमारे environment के अकॉर्डिंग कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से डील करना चाहिए उस environment के साथ, और हमें purposefully act करना चाहिए. Purposefully means जो situation की डिमांड हो, कुछ हद तक हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें. So that is what an intelligent person should be, according to Wechsler. Other psychologists such as Gardner and Sternberg have suggested that an individual not only adapts to the environment but also actively modifies or shapes it. Obviously, that is true for now and for the present current situation कि एक इंसान सिर्फ अपनी situation के according ही काम करे, जो वेस्टलर ने कहा, बताने की कोशिश करी. So that is not a true sense of what an intelligent person will do. Basically, what an intelligent person will do is he will try to change or alter the environment that is affecting him or her either badly or positively. So वो चेंज करना, वो मॉडिफाई करना अपने इन्वायरमेंट को, वो दो साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो थे गार्डनर और स्टर्नबर्ग. You'll be able to understand the concept of intelligence and how it was evolved when we will discuss some important theories of intelligence. Obviously, अभी तक मैंने इतने सारे साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स के बारे में बताया, तो इनकी कुछ थ्योरीज भी थी जो सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड थी, और उन्हीं को हम पढ़ेंगे आगे.